Hello students, today we will discuss about a very important topic, a very important security of our Indian financial markets, and that is government security. Now students, we will discuss this topic in four important parts. That is, number one, what is the meaning of government security and how the government securities are issued. इसका मतलब क्या है और ये कैसे इशू किया जाता है. नंबर टू, What is the basic purpose of issuing government securities? इसे इशू क्यों किया जाता है. नंबर थ्री, what are the important features of the government securities? इसके important features क्या क्या है. एंड फोर्थ वन, what is the settlement procedure of government securities? इसकी settlement होती कैसे है या clearance and settlement procedure है क्या. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. नंबर वन, what is the meaning of government securities? Students, the government securities are those securities which are issued by RBI on behalf of the central government, state government and semi-government bodies. They are issued basically on their face values. The government securities, they are also regarded as dated securities. DATED, dated securities, or gilt-edged securities. GILT, gilt, and edged, EDGED, edged securities. Now let us see why they are called as dated securities. Students, suppose this is the example of a government securities. मैंने यहाँ पे लिखा है 9.25% ZOI, capital ZOI 2025. Suppose this is a debt which was issued by the government of India. Now, in this particular debt, we can say that this percentage is basically the rate of interest which is applicable upon the government securities. That is 9.25%. ZOI stands for Government of India. That means who is the issuer of this security? That is the Government of India. Government of India has issued this security. That's why the name of Government of India is mentioned here. But what about this 2025? That means this is the year when the security is going to be matured. That is in the year 2025. And since the date of maturity is mentioned upon the government securities, that's why the government securities are also regarded as dated security. क्योंकि इस पर डेट ऑफ मेच्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को देखते ही आप बता सकते हैं कि इसकी डेट ऑफ मेच्योरिटी क्या है. मेच्योरिटी डेट लिखी होती है. दैट्स व्हाई दे आर पॉपुलरली नोन एज डेटेड सिक्योरिटीज. Now, why they are regarded as gilt-edged securities? Gilt-edged securities. इन्हें gilt-edged क्यों कहा जाता है? Basically, when we talk about government securities, basically there is a guarantee regarding the repayment of two things. Number one, the principal amount, and number two, the interest thereupon. जब भी हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात करते हैं तो दो चीजों की मिलनी या दो चीजों के मिलने की पूरी गारंटी होती है. देयर इज अ गारंटी रिगार्डिंग द रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट. जो भी पैसा हमारे द्वारा लगाया गया है वह पैसा मिलने की पूरी तरीके से गारंटी होती है. प्लस इंटरेस्ट देयर अपॉन, यानी हमारे द्वारा लगाए गए प्रिंसिपल मनी पे मिलने वाला ब्याज. दोनों चीजें मिलने की पूरी गारंटी होती है. दैट्स व्हाई दे आर रिगार्डेड एज ऑप्टिमम सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट्स or ultimate secured instruments. That's why they are popularly known as gilt-edged security. So the government securities are also known as dated security and gilt-edged securities. Now students, the second topic, what is the basic purpose of issuing government securities? इनका पर्पस होता क्या है, क्यों गवर्नमेंट सिक्योरिटीज गवर्नमेंट के द्वारा इशू की जाती है. Basically, there are three important purposes of government securities. तीन important purpose से इसे इशू किया जाता है. Number one is cash financing और to meet the fiscal deficit. जब भी fiscal deficit की जरूरत पड़ती है तो गवर्नमेंट इसे इशू कर देती है. Number two is refunding और the conversion और refinancing of maturing securities. जो पहले से इशू की गई है सिक्योरिटीज, उनके पैसे को या मैच्योरिटी के समय उनके पैसे को देने के लिए भी गवर्नमेंट इसको इशू कर देती है. एंड थर्ड पर्पज इज एडवांस रिफंडिंग. दैट मीन्स द सिक्योरिटीज दैट हैव नॉट बीन मैच्योर्ड,
जो सिक्योरिटी अभी मैच्योर नहीं हुई है उसके पैसे को भी पेमेंट करने के लिए गवर्नमेंट कभी कभी इसको इशू कर देती है. सो देयर आर 3 इंपॉर्टेंट पर्पस ऑफ इशूइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. दैट इज नंबर 1 इज कैश फाइनेंसिंग और टू मीट फिजिकल डेफिसिट्स. नंबर 2 इज रिफंडिंग एंड थर्ड वन इज एडवांस रिफंडिंग. अब तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या है? देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फीचर्स. Some of the important features are as number 1, the government securities, they are issued by RBI on behalf of central government, state government and semi-government bodies. Semi-government bodies जैसे municipal corporations, state electricity board, export-import bank of India, IFCI, etc. These are semi-government bodies. So, feature number 1 is they are issued by RBI on behalf of central government, state government or semi-government bodies. Number 2 feature, they are issued on their face value. जो भी फेस वैल्यू होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी की, ये इसी पे इशू की जाती है. क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट देना होता है और इंटरेस्ट भी वहां पे मेंशन होता है. नंबर थर्ड वन इज व्हाट इज द मैच्योरिटी ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. द मैच्योरिटी ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अराउंड 2 to 30 years. कभी कभी ये 2 सालों के लिए भी इशू होती है और कभी कभी कुछ केसेस में 30-30 सालों के लिए भी इशू होती है. सो द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी इज अराउंड 2 to 30 years. 2 से 30 सालों तक के लिए भी ये इशू होती है. फोर्थ इंपॉर्टेंट फीचर इज दे आर अल्टीमेट सोर्स ऑफ लिक्विडिटी बिकॉज आरबीआई इज ऑलवेज रेडी टू डिस्काउंट और टू रीडिस्काउंट सच सिक्योरिटीज. ये इन्हें कहा जाता है दे आर अल्टीमेट सोर्स ऑफ लिक्विडिटी. ये अल्टीमेट लिक्विड है. क्यों? क्योंकि आरबीआई हमेशा तैयार होती है उसको या तो डिस्काउंट करने के लिए या तो रीडिस्काउंट करने के लिए. फिफ्थ वन, दे आर लिस्टेड ओवर द स्टॉक एक्सचेंजेस एंड नो सेपरेट लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स इज देयर बिकॉज सेबी इशूड नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट. स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऐसी सिक्योरिटीज होती है जो स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड होती है एंड वी कैन सिक्योर्ड देम इन डीमेटलाइज्ड फॉर्म. हम उसे डीमेट फॉर्म में भी सिक्योर कर सकते हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसके लिए कोई लिस्टिंग एग्रीमेंट या लिस्टिंग रिक्वायरमेंट की किसी प्रकार की कोई जरूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि सेबी इसके लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देती है. आप लोग को याद होगा कि लिस्टिंग एग्रीमेंट में, जो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज के लिए हमेशा लेटर प्रेसिडेंट टू लिस्टिंग इज इसेंशियली रिक्वायर्ड फ्रॉम CLA. सेंट्रल लिस्टिंग अथॉरिटी एक लेटर प्रेसिडेंट टू लिस्टिंग इशू करती है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देन देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी सच काइंड ऑफ लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स. कोई जरूरत नहीं होती है और सेबी यहाँ पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देती है. सिक्स्थ इंपॉर्टेंट फीचर इज रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड हाफ ईयरली और बाई एनुअली. इसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन होता है, जो मैंने अभी कुछ देर पहले दिखाया था, जैसे 9.25% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2025, तो 9.25 जो लिखा हुआ था दैट इज पेड हाफ ईयरली और बाई एनुअली. ये एक साल में 2 बार इसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है वो कैलकुलेटेड होती है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज इट इज यूज्ड इन पेमेंट ऑफ इंडिया सब्सक्रिप्शन टू IMF, IBRD, IDA, ADB एक्सेट्रा. ये बेसिकली गवर्नमेंट ने उधारी लिया हुआ है IDA से, IDBI से, वर्ल्ड बैंक से, तो इनकी पेमेंट के लिए भी जो है गवर्नमेंट इन सिक्योरिटीज को इशू करती है. नेक्स्ट फीचर इज एब्सोल्युटली सिक्योर्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. दैट्स व्हाई दे आर रिगार्डेड एज गिल्ट एज सिक्योरिटीज. ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. ये एब्सोल्युटली सिक्योर्ड होता है बिकॉज देर इज अ गारंटी रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ बोथ द अमाउंट, दैट इज प्रिंसिपल मनी प्लस इंटरेस्ट देयर अपॉन. दोनों की गारंटी होती है. दैट्स व्हाई दे आर रिगार्डेड एज एब्सोल्युटली सिक्योर्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज दे आर इशूड इन द डिनोमिनेशंस ऑफ ₹1000. ये एक 1000 रुपए के डिनोमिनेशन पे इशू होते हैं. यानी एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदनी होगी तो 1000 रुपए लगानी होगी, दूसरा तो 2000, तीसरा तो 3000, तो 1000 के मल्टीपल्स में ही ये इशू होता है. पहले पुराने जमाने में, याद से 10-20 साल पहले, ये 100 के मल्टीपल्स में इशू हुआ करते थे. लेकिन अब ये डिनोमिनेशंस जो इनकी वैल्यू है दैट इज 1000 रुपीज. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज देयर इज नो नीड ऑफ इशूइंग प्रोस्पेक्टस.
स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं कि किसी भी सिक्योरिटी को इशू करने में प्रोस्पेक्टस की जरूरत होती है. इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर लेट डाउन बाय द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट और द प्रोविजंस ऑफ सेबी एक्ट. बट when the government used to issue the government securities, then there is no need of issuing prospectus. इन सिक्योरिटीज को इशू करने के लिए प्रोस्पेक्टस की जरूरत बिल्कुल नहीं होती है. एंड लास्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज देयर इज नो नीड ऑफ अंडरराइटिंग फॉर सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. जब सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी जब इनको बेचा जाता है तो अंडरराइटिंग फैसिलिटी की कोई जरूरत नहीं होती है. स्टूडेंट्स आपको पता होगा अंडरराइटिंग का बेसिक फीचर क्या है. द अंडरराइटर्स दे बेसिकली गिव्स द गारंटी रिगार्डिंग द सक्सेस ऑफ द इशू, बट द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर अल्टीमेट सिक्योर. दैट्स व्हाई देयर इज नो नीड ऑफ इशूइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. और आज का लास्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, द फोर्थ इंपॉर्टेंट सेगमेंट, दैट इज व्हाट इज द सेटलमेंट प्रोसीजर ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. इनकी सेटलमेंट कैसे होती है. आइए इसको हम लोग एक इंपॉर्टेंट डायग्राम से देखें कि इनकी सेटलमेंट प्रोसीजर कैसे होती है. देखिए यहां पे मैंने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की सेटलमेंट प्रोसीजर को बनाया है. स्टूडेंट्स, द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दे मे बी परचेस्ड बाय और द ट्रेडर्स इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, दे आर टू इंपॉर्टेंट पार्टीज. दैट इज नंबर 1 इंडिविजुअल्स और नंबर 2 द बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड अदर इंस्टीट्यूशंस. यानी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के ट्रेडर्स हैं, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में बेसिकली इन्वेस्टमेंट करते हैं, दे माइट बी इंडिविजुअल्स, दे माइट बी बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और अदर इंस्टीट्यूशंस. वो या तो इंडिविजुअल होंगे या तो बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या और कोई संस्थाएं होंगी. तो ट्रेडर्स बेसिकली 2 सेगमेंट में डिवाइडेड होते हैं. दे माइट बी इंडिविजुअल्स, दे माइट बी बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. नाउ व्हेन द इंडिविजुअल्स दे purchase these government securities, they have to visit PDO of RBI. PDO stands for Public Debt Office of RBI. RBI का एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, दैट इज पब्लिक डेप्ट ऑफिस. ठीक है, ऐसा ऑफिस जो डेप्ट में डील करता है और पब्लिक के लिए ओपन रहता है. सो द इंडिविजुअल्स विजिट द पब्लिक डेप्ट ऑफिस ऑफ RBI to purchase the government securities. But when the banks or financial institutions have to purchase these government securities, they have to open a current account with RBI. अगर वित्तीय संस्थाओं को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदना होता है तो उनके लिए मैंडेटरी होता है कि वह एक करंट अकाउंट खोल ले. किसमें? RBI में. किसी भी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक में करंट अकाउंट खोल ले, क्योंकि किसी भी कॉमर्शियल बैंक में RBI की परमिशन से ही करंट अकाउंट खुलती है. So the individuals have to visit the PDO of RBI and the banks and the financial institutions have to visit the or they have to open a current account with RBI. And the settlement procedure, final settlement procedure is same, that is DVP method. That means delivery versus payment method. स्टूडेंट्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है. कभी भी आप लोग फाइनेंशियल मार्केट की ट्रेडिंग सेटलमेंट में देखेंगे, क्लियरेंस एंड सेटलमेंट में एक डीवीपी मेथड होता है, डिलीवरी वर्सेस पेमेंट मेथड. इसका मतलब समझते हैं. देखिए, ये बेसिकली 1995 में गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था या आरबीआई के द्वारा इनिशिएट किया गया था डीवीपी मेथड. इसके तहत क्या किया गया है? इसके तहत 2 चीजें हैं. द पेमेंट प्रायर टू डिलीवरी, यानी सिक्योरिटीज जब डिलीवर्ड होने वाली हो उसके पहले ही पेमेंट करना होगा. Whosoever is the purchaser of the security, he is supposed to make payments prior to the delivery. और नंबर 2, पेमेंट अगेंस्ट डिलीवरी, यानी एक तरफ से डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटी लीजिए और एक तरफ से पेमेंट करिए. तो 2 तरीके से इसमें पेमेंट किया जाता है. पेमेंट प्रायर टू द डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटी, पहले कर दो, या पेमेंट अगेंस्ट द सिक्योरिटी, एक तरफ से सिक्योरिटी लीजिए और एक तरफ से पेमेंट करिए, यानी दोनों एक साथ साथ होना चाहिए. सो डीवीपी मेथड इज यूज्ड फॉर द फाइनल सेटलमेंट ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटी. बट आज के डेट में ये डीवीपी मेथड भी बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, बिकॉज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दे आर listed over the stock exchanges, and in the stock exchanges we can held or we can hold the government securities in dematerialized form. तो डीमेट फॉर्म में भी हम लोग इसको सिक्योर कर सकते हैं. और स्टॉक मार्केट में आप लोग जानते ही हैं इंस्टेंट पेमेंट होता है. पेमेंट के अगेंस्ट आपके यहाँ डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटी ऑलरेडी हो जाती है. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट
गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।